A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapters of microeconomics as well as the macroeconomics, right? So now in today's class, so let us discuss about, so we have completed the term 1 syllabus, so we are also discussing the concepts of the term 2 also. Okay? So now let us start with the chapter that is concepts of the revenue. Okay, so when we talk about the concepts of the revenue, so in this chapter we are going to discuss about the topic or the concept that is meaning of the revenue. So what is the meaning of the revenue? Okay, so next we will discuss the concept or the aspects of the revenue. Okay, so what are the different aspects of the revenue? That is total revenue, average revenue, marginal revenue, etc. Now moving we will move to the relation using the TR, MR and AR. Okay, so what is the relation between the TR, AR and MR? कि TR total revenue, marginal revenue and average revenue में क्या relation होता है, ठीक है. Next, so the relation between these three we will discuss in the different market, like in perfect competition, in the monopoly as well as in the monopolistic competition. Okay, so there are different kinds of markets are there: perfect competition, monopoly and the monopolistic. Next we will discuss the demand curve of the market forms in the same diagram. Okay, so let us discuss all these topics. So start with the topic that is concepts of the revenue. Concepts of revenue. Okay, so simply when we talk about the what is revenue, so revenue refers to the money receipts of a firm. Revenue refers क्या करता है, money receipts of a firm का money receipts होता है from selling its output, कि उसके output को sell करने पे, ठीक है. So in simple words, sale proceeds of a firm refers to a revenue, ठीक है. जो भी सेल प्रोसीड कर रहा है फर्म को, जो भी फर्म का सेल हो रहा है, ठीक है, जो भी फर्म का सेल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी रेवेन्यू, राइट. सो सपोज अ प्रोड्यूसर हैज़ प्रोड्यूस 1000 टेबल. अगर प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1000 टेबल प्रोड्यूस कर रहा है. बाय सेलिंग दीज टेबल, उसने इस सारी टेबल को सेल किया, ही गेट्स दी 20,000. इन रिटर्न उसको 20,000 मिल रहा है. सो दिस इज सेल प्रोसीड्स फॉर हिम. अब उसके लिए यही क्या हो गया है, सेल प्रोसीड्स हो गया, ठीक है. सो इन इकोनॉमिक्स द अमाउंट ऑफ 20,000 इज कॉल्ड दी रेवेन्यू. इकोनॉमिक्स में इसी को क्या बोलते हैं, ये 20,000 जो था दैट इज कॉल्ड दी रेवेन्यू. एंड द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाई इट. और जो रेवेन्यू होता है फर्म का, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, मनी रिसीव्ड बाई दी सेलिंग अ गिवन output. Total revenue. So, total revenue is the amount of a firm which is received by selling a given quantity of TR is the total receipt, total money receipt. TR क्या होता है, total money receipt होता है of a producer का corresponding to a given level of output, ठीक है. So it is estimated at the product of the quantity sold at the price of the commodity, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, it is the amount of the firm
receives by selling a given quantity of output. Okay, given quantity of output. Okay, तो इसको अगर हम लोग को एस्टिमेट करना होगा तो हाउ कैन वी एस्टिमेट इट? वी कैन एस्टिमेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ दी, सो टोटल रेवेन्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ दी Q इंटू P. ठीक है, Q और P का है, तो यहाँ पे P आर दिस टोटल रेवेन्यू, Q इज दी आउटपुट ऑफ दी commodity and P is the price of the okay. So TR is equal to Q into T, quantity into output. So total revenue, output of the commodity and the price of the commodity. So मैंने आपको बोला था कि प्राइस किसके इक्वल होता है? प्राइस इज इक्वल टू दी ए आर. सो आप ये भी लिख सकते हो दैट इज पी आर इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू ए आर. ठीक है, प्राइस तो हम लोग ए आर भी कह सकते हैं, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं और टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज़ दी, जितने भी आपके मार्जिनल रेवेन्यू है उनका समेशन कर देते हैं, इसको किसके इक्वल हो जाता है? टोटल. ठीक है, तब यहाँ पे देखो क्या क्या है. टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? इट इज़ दी अमाउंट ऑफ अ फर्म का अमाउंट है इट इज़ रिसीव बाय सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. जो भी गिवन क्वांटिटी है आउटपुट की, उसको सेल करने के बाद जो भी इनकम हो रही है दैट इज कॉल्ड दी टोटल रेवेन्यू. So here the total revenue is equal to quantity into the price. Okay, quantity यहाँ पे कितनी है जो भी हम लोग लेंगे, और प्राइस ऑफ दी कमोडिटी. ठीक है, और प्राइस को वी कैन ऑल्सो से दैट द एवरेज रेवेन्यू. सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्वांटिटी इंटू पी इज इक्वल टू ए आर. सो ए आर भी लिख सकते हैं, और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ दी मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, जो भी डिफरेंट मार्जिनल रेवेन्यू है उनको अगर हम लोग सम कर देते हैं, so we get the value of the total revenue. Okay, so this is the total revenue. Okay, so let's take a one table. Quantity sold. Okay, quantity sold. Next is price. Here PR. Quantity sold is 1 to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Price is 10, 9, 8, 7, 6. 10, 9, 8, 7, 6. तो हाउ वी कैलकुलेट, हमने पढ़ा था पी आर इज इक्वल टू क्या होता है? क्वांटिटी इंटू प्राइस. क्वांटिटी इज ये Q, this
multiply and get the value of 10, 18, 3, 8 jump 24, 4, 7 jump 28, 5, 6 are 30. ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो वी कैन ऑल्सो प्लॉट इट इन दी डायग्राम में. हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ डिफरेंट यहाँ पे ये होगा, व्हेन वी टेक दी थिंग्स दैट इज एवरेज टोटल जो कर्व होता है रेवेन्यू का, वो क्या होता है इन द केस ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड द मोनोपोलिस्टिक, इन सारे केस में ये क्या होता है, अलग होता है. ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सेम नहीं कर सकते हैं. तो व्हेन वी ड्रॉ इट तो क्या होगा कि so the next one is that is average revenue. Average revenue. Okay, so average revenue, it is the per unit revenue received from the sale of the commodity. ठीक है, जब भी कमोडिटी सेल होती है तो पर यूनिट कितना रेवेन्यू क्या है वो रिसीव्ड हुआ है. ठीक है, ठीक है, पर यूनिट कितना रेवेन्यू रिसीव हुआ है उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, सो इट इज द पर यूनिट इनकम रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस. ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू is also called as price. ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइस भी बोलते हैं. ठीक है, सो फिर आता है दैट इज, सो हाउ वी कैलकुलेट दी एवरेज रेवेन्यू. अगर हमें एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो हाउ वी कैलकुलेट दी एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं. पर यूनिट कितना आउटपुट या पर यूनिट कितनी रेवेन्यू जनरेट होती है इसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू. सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी और आउटपुट. Okay, so if we have to calculate the average revenue, so average revenue क्या हो गया, average revenue is equal to TR upon quantity or the output. So the next one is, remember, अगर हम लोग बात कर रहे हैं average revenue की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस की, so both are the same. How? So let us prove it. इसको हम लोग प्रूव करते हैं. So AR is same as AR is same as price. AR क्या है वो, प्राइस से सेम है. सो इन इकोनॉमिक्स द टर्म AR एंड द प्राइस इम्प्लाई द सेम. दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है, सो सिंस दे रिप्रेजेंट दी सेम वैल्यू, ये दोनों क्या करते हैं, सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं. सो P इज इक्वल टू AR, प्राइस इज इक्वल टू AR हमें प्रूफ करना है. सो आपको पता है AR इज इक्वल टू क्या होता है, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q. ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं और TR इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू Q. AR इज इक्वल टू होता है TR अपॉन Q. ठीक है, और TR इज इक्वल टू होता है P अपॉन Q. ओके, फिर देखिए कह रहा है कि AR इज इक्वल टू P इंटू Q अपॉन Q. AR इज इक्वल टू, अगर हम लोग TR को स्प्लिट करें, TR की जगह P इंटू Q लिखें अपॉन Q. ठीक है, सो ये क्या हो गया, P इंटू Q अपॉन Q अगर कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखो Q कट गया. सो AR इज इक्वल टू प्राइस. आ गया ना, सो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था. स्टेटमेंट ये था कि हमें ये प्रूफ करना था कि AR इज सेम एज द प्राइस.
क्या कर सकते हैं, इसके प्रूफ करने के लिए AR क्या है, AR इज द सेम एज द प्राइस, AR क्या है, प्राइस की तरह ही है. सो P इज इक्वल टू AR, वी हैव टू प्रूव दिस वन. So AR is equal to TR upon Q. If we have to calculate the average revenue, so we will divide the TR divided by Q. ठीक है, ये हो गया. और TR हमें कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था TR is equal to P. TR किसके इक्वल होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी. सो अब अगर हम लोग AR की जगह पे TR को स्प्लिटेड फॉर्म P इंटू Q लिखे, डिवाइडेड बाई Q लिखे, तो ये दोनों कट जाएगा, P बचा. सो AR is equal to P. So it is shown as the relationship between the price or AR. So we can say that the AR is equal to price. So since the seller get what the buyer pay, therefore जो भी buyer है, seller वही gain करता है जो buyer pay करता है. So price and AR are one. दोनों ही क्या है, one है. And the same thing, दोनों ही same है. That is why AR curve and the demand curve for a firm are the सेम. इसीलिए जो दोनों कर्व होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है. इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AR, सो इफ द वैल्यू इज ऑफ द क्वांटिटी एंड द TR इज गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट द AR. हाउ, TR अपॉन क्वांटिटी. ठीक है, जैसे 1 2 3 4 दिया है, TR आपका दिया है 10 18 24 28. सो हाउ वी कैलकुलेट द AR, इफ वी डिवाइड TR बाई, तो पहला हो गया 10, सेकेंड 9 8 7. सो 10 9 8 7, दिस इज द AR. ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द AR लाइक दिस. तो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, so what is the marginal revenue, let us discuss. मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज़ द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू. ये किस में एडिशन होता है, टोटल रेवेन्यू में होता है फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट. कि किस में सेल, एडिशनल यूनिट में सेल ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, किसी भी कमोडिटी में जो भी हम लोग एडिशनल सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एडिशनल सेल कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी में, कोई भी कमोडिटी इसको बोलते हैं, जो भी रेवेन्यू हमें मिल रहा है कोई भी एडिशनल सेल करने पे, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, सो यू नो वेरी वेल हाउ वी कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस TR, टोटल रेवेन्यू n माइनस TR n माइनस 1. सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ TR. समटाइम्स क्या होगा कि MR को हम लोग निकाल सकते हैं TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. कैसे, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी, जैसे यूनिट्स क्या है 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव दिए हैं, बट एक टाइम के बाद 5 के बाद डायरेक्टली 8 दे दी है, और हमें कैलकुलेट करना है 6 और 7. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हम लोग करेंगे कि कैसे कि जो भी प्रीवियस वन है उसमें जितना भी चेंजेस आया उस चेंज के अकॉर्डिंग, और क्वांटिटी में जो भी चेंज आया, जैसे 5th था और 8 निकालना है तो 8 माइनस 5 कर दिया, तो जो 5th पे आपका टोटल रेवेन्यू दिया है और जो हमें 8th पे दिया है, तो 6 वाला हमें कैलकुलेट करना है. तो 8 माइनस 5th जो भी आपका TR होगा उसको कैलकुलेट करके हमको 6 वाला कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, yes, so this is all about your marginal revenue. Okay. Now the next one is, that is we have to study the relationship between the TR, MR and AR. तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक, that is relationship between TR, AR and MR. ठीक है, TR, MR और AR में क्या रिलेशन है.
स्पेसिफिक एनालिसिस में सो चेंज इन रेवेन्यू कर्व, जो भी रेवेन्यू कर्व में चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द प्राइस लेवल चेंजेस इन द मार्केट, कि मार्केट में प्राइस लेवल में कितना चेंज हो रहा है. सो रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR डिपेंड अपॉन द फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कि कैसा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो जैसा मार्केट है कि वेदर द मार्केट इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और दी मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज. पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पे पढ़ेंगे, फिर हम लोग मोनोपोली एंड दी मोनोपोलिस्टिक पे हम लोग अलग अलग मार्केट पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या है, द टॉपिक इज रिलेशनशिप among TR, AR and MR in perfect competition. In perfect competition. Okay. So before understanding the relation between TR and MR with the perfect competition, first of all we should know what is perfect competition. Okay. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि perfect competition होता क्या है. ठीक है, perfect competition is a one of the form of the market. ये क्या होता है, एक मार्केट का फॉर्म होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ओके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ओके, एंड दे आर they produce प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं एंड दे हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट. परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट. ओके, सो दे हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट एंड द लास्ट वन इज दैट इज फ्री एग्जिट ऑफ फॉर्म्स. ओके, जो भी फॉर्म्स होती हैं उनका क्या है, दे कैन कम, दे कैन फ्रीली एंटर एज वेल एज दे कैन एग्जिट दी फॉर्म्स ऑल्सो. ओके, उनका जब है वो आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं. ओके, तो दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो क्या क्या हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, फर्स्ट वन इज दैट इज there is large number of buyers and sellers. Okay, so in the perfect competition जो buyers और sellers होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं. दे प्रोड्यूसिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसा आइडेंटिकल प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं. उनके पास क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द मार्केट, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वो सारी चीज़ों से उनको क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन भी होती है. एज वेल एज दे आर दी फ्री एंट्री एंड दी एग्जिट ऑफ दी फर्म्स. क्या है, फ्रीली एंटर भी कर सकती हैं और फर्म फ्रीली एग्जिट भी कर सकती हैं. सो इट इज़ अप टू देम, वो आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं. सो दिस इज़ दी परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो इन दिस केस वी हैव टू स्टडी दी रिलेशन बिटवीन दी टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड दी एवरेज रेवेन्यू.